तो फर्स्ट आज का जो थीम है योगा फॉर वेलनेस के ऊपर हम योगा करेंगे। बाकी लोग बाद में ज्वाइन करेंगे। हम लोग स्टार्ट करते हैं। हर एक चीज की जो शुरुआत होती है वो प्रेयर से होती है, तो हम प्रेयर से स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट मैं बोलूंगी, आप मेरे साथ रिपीट कर देना। तो जॉइन योर पाम्स, बैक स्ट्रेट, क्लोज योर आईज, sitting comfortable posture, any posture. Close your eyes, take a deep breath, slowly breathe out, again breathe in, slowly breathe out. Relax your mind, relax your body. गच्छध्वं संवदध्वं गच्छध्वं संवदध्वं संवो मनांसि जानताम् संवो मनांसि जानताम् देवाभागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते संजानाना उपासते संजानाना उपासते संजानाना उपासते संजानाना उपासते संजानाना उपासते। फर्स्ट वार्म अप इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम जब कोई भी एक्सरसाइज करते हैं तो एक्सरसाइज करने से पहले वार्म अप इम्पोर्टेंट है। दैट्स व्हाई, क्योंकि हमारे जॉइंट ओपन होने चाहिए, हमारे मसल्स कुछ चीज के लिए प्रिपेयर होने चाहिए। तो फर्स्ट जो भी एक्सरसाइज करेंगे उसकी शुरुआत जो होती है वो वार्म अप से होती है। तो फर्स्ट हम वार्म अप से स्टार्ट करेंगे। वार्म अप के लिए फर्स्ट शोल्डर विद डिस्टेंस रखना है अपने दोनों पैरों में, एंड बोथ हैंड बिसाइड योर वेस्ट। दोनों हाथों को कमर पे रखेंगे। स्लोली मूव योर नेक, राइट साइड, देन लेफ्ट साइड, अगेन राइट साइड, देन लेफ्ट साइड। टिल्ट योर नेक, right side, then left side. Then backward bending and forward bending. Again back, forward. Then rotate your neck clockwise and anti-clockwise. After neck movement, then start shoulder. Hand rest on your shoulder. Inhaling, raise your hands up, touch your elbows. Exhaling down. Again inhaling up. Exhaling down. Same practice, reverse. Inhaling up. Exhaling down. After shoulder, then upper back, hands parallel to shoulder level, palm facing opposite side, just like traffic police. And twist your upper body towards right side, then left side. Again right side, then left side. Hands slowly, hands down, then waistline. One hand west, one hand up. Slightly bend in elbows and bend towards left side. Bend. 1, center, 2,
center. 3, hold it, hold for 5 seconds. Feel the stretch in your waistline, arms completely. 5 second hold, breathing normal. Again bend, come back in center. Slowly hands down. Other side. Inhale, hand up, bend it. 1, 2, 3. Hold it. Hold for 5 seconds, breathing normal. Without hold your breath. Maintain 5 seconds. After 5 seconds, slowly come back in center and then hands down. Then hand beside your waist. Inhaling, arch your back. आप जितना पीछे जा सकते हैं उतना पीछे जाना है. Then come back, come forward. Inhaling, arch your back. Then exhaling, forward. Look straight. Push your hips back. Again, inhaling, arch your back. Exhaling, bend it forward. Look straight. After back, mark. Elbows touch. जितना झुक सकते हैं उतना झुकिए। ब्रीदिंग नॉर्मल, 5 सेकेंड होल्ड करेंगे। 5 4 3 2 1। इनहेलिंग अप, टर्न टुवर्ड्स राइट साइड, exhaling down. Again hold your toe, look straight.
सामने देखते हुए अपने टोस को होल्ड करेंगे 5 4 3 2 1 अगेन इनहेलिंग अप turn towards left side and down again 5 seconds hold breathing normal again inhaling up exhaling hands down one hand in one hand side and twist your back twist front shoulder and back shoulder should be one line and twist जितना ट्विस्ट कर सकते उतना ट्विस्ट कीजिए 5 4 3 2 1 other side 5 4 3 2 1 come back legs together one leg fold hold your ankle hold your toes जो पॉसिबल है वो चीज होल्ड करनी है and then slowly leg up knee straight अगर टो को पकड़ सकते तो टो को पकड़ लीजिए otherwise hold your ankle 5 second hold 5 4 3 2 1 down up 5 4 3 2 1 slowly down after warm up after stretching then start कपालभाति को बहुत सारे लोग प्राणायाम मानते हैं इसलिए कपालभाति हमेशा एंड में करते हैं बट कपालभाति इज नॉट प्राणायाम कपालभाति इज क्लींजिंग प्रोसेस एब्डोमेन एक्सरसाइज क्रिया है कपालभाति प्राणायाम नहीं है तो हम 20-20 स्ट्रोक के 2 राउंड्स करेंगे कपालभाति के तो कपाल मींस फोरहेड एंड भाती मींस शाइड जैसे लोहार के पास जो भाता रहता है जिससे वो अपने कोयले को जलाता है जिससे भाता जो कोयला शाइन करता है जस्ट लाइक कपालभाति है क्योंकि कपालभाति जब हम करते हैं तो हमारे जो टॉक्सिन्स है उसको रिलीज करते हैं तो कपालभाति से टॉक्सिन्स रिलीज करते हैं दैट मींस आपके फेस को अपने स्किन को ग्लो करता है तो इसलिए कपालभाति को शाइन बोलते हैं तो कपालभाति करने के लिए अपने ज्ञान मुद्रा में इंडेक्स फिंगर थंब को क्लोज करना है बैक कंप्लीटली स्ट्रेट एक इनहेल करना है और उसके बाद आपको एक्सहेल करना है एवरी इनहेलेशन एंड एवरी एक्सहेलेशन आपको नेचुरल करना है इसमें जो इनहेलेशन है वो पैसिव रहेगा एक्सहेलेशन जो है वो एक्टिव रहेगा सो इनहेल एंड एक्सहेल स्टार्ट 20 स्ट्रोक कंप्लीटली एक्सहेल लास्ट जो स्टार्टिंग के जो स्ट्रोक होते हैं वो हम नॉर्मल एक्सहेलेशन के साथ करते हैं बट लास्ट स्ट्रोक जो है वो कंप्लीटली एक्सहेल होना चाहिए क्योंकि लास्ट स्ट्रोक के बाद नेचुरली फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए नेचुरली ब्रीथ होल्ड होनी जरूरी है क्योंकि जब आप कपालभाति की स्ट्रोक देते हो तभी कपालभाति की इंटरनल प्रोसेस स्टार्ट नहीं होती है तो कपालभाति जी के बाद आप जब लास्ट स्ट्रोक देते हो लास्ट स्ट्रोक के बाद जब फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए नेचुरली ब्रीथ होल्ड होती है उसके बाद हमें करनी है डीप ब्रीथिंग टेक अ डीप ब्रेथ एंड स्लोली ब्रीथ आउट जो डीप ब्रीथिंग करते हैं तभी कपालभाति की इंटरनल प्रोसेस स्टार्ट होती है तो जो एक्सहेलेशन थ्रू हमने जो टॉक्सिन्स रिलीज किए हैं वो हमारे फोरहेड पे स्टक होते हैं तो जब आप फोर्सफुली एक्सहेल करते हो तो इमीडिएटली सारे टॉक्सिन्स बाहर नहीं निकलते हैं अपने फोरहेड पे स्टक होते हैं तो हम जब डीप ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट करते हैं तभी वो टॉक्सिन्स धीरे-धीरे ब्रीथिंग थ्रू रिलीज होना स्टार्ट होता है तो कभी-कभी कपालभाति करते टाइम पे थोड़ा सा सर में चक्कर आने जैसे होता है हेवीनेस आता है या फिर थोड़ा सा हेडेक होता है फ्रैक्शन ऑफ टाइम के लिए बट वो
आप जो कर रहे कपालभाति वो गलत नहीं, वो करेक्ट है, करेक्ट है कपालभाति। इसके सिम्टम्स है कि आपके चक्कर आ रहे हैं, सर में भारीपन आ रहा है। तो take a deep breath, slowly breathe out, 1 minute continue breathe in and breathe out. Simply inhale and gently exhale. Again inhale, slowly exhale and relax your breathing, relax your body. Second round Kapalbhati, again 20 strokes. Inhale, exhaling start, continue 20, last stroke completely exhale. Take a deep breath. Slowly breathe out. Focus on your breathing. Simply inhale and gently exhale. Again inhale and slowly exhale. Focus on your breathing. Focus on your abdomen. Inhaling, abdomen outside, and exhaling goes inside. Relax your breathing, relax your abdomen, and relax your body. Then after Kapalbhati हम लोग करेंगे एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट स्टैंडिंग एक्सरसाइज से स्टार्ट करेंगे। So please stand up. Everyone stand. स्टैंडिंग एक्सरसाइज से स्टार्ट करेंगे। खड़े हो जाइए सब लोग। अपने अभी हम फर्स्ट करेंगे ताड़ासन, ताड़ यानी ट्री पोज। ट्री ताड़ के पैर जैसे हमारी बॉडी कंप्लीटली स्ट्रेट होनी चाहिए। सिर्फ ताड़ासन करेंगे। ताड़ासन के लिए फर्स्ट अपने हिप्स को क्लोज करेंगे और टोज को बाहर की तरफ। लेग का जो फीट का जो शेप है वो वी शेप होना चाहिए। अभी हम ताड़ासन करते टाइम पे तीन चीजों को एक साथ करना है। इन्होलेशन, रेज योर हैंड्स अप एंड साइमल्टेनियसली स्टैंड ऑन योर टो। ये तीनों चीजें एक साथ करनी है। फर्स्ट फोकस ऑन योर सिंगल पॉइंट, किसी भी एक पॉइंट के ऊपर फोकस कीजिए फर्स्ट एंड देन स्लोली inhaling raise your hands up, simultaneously stand on your toe, very slowly stand on your toe, interlock your finger and stretch it up, completely stretch it up. हाथों को कंप्लीटली ऊपर की तरफ स्ट्रेच करना है। आप जितना स्ट्रेच कर सकते हो उतना। आंखें बंद नहीं करनी है। एक पॉइंट के ऊपर कंसंट्रेट कीजिए, ब्रीदिंग नॉर्मल। इससे कंप्लीटली आपके टोज टू फिंगर कंप्लीट बॉडी में स्ट्रेच आएगा। इससे आपकी काफ्स, थाई मसल्स स्ट्रांग बनेंगे, आपका कंसंट्रेशन लेवल बढ़ेगा। मेंटेन hold for 5 seconds, breathing normal, फिर inhale, then exhaling slowly, hands and leg down, very slowly hands and leg down. Same practice one more time, slowly inhaling, raise your hands up, simultaneously stand on your toe, interlock your finger and stretch it up, completely stretch it up. Feel the stretching effect in your calves, thighs, hands and back completely. इससे आपकी concentration level बढ़ती है कि बैक के लिए बेस्ट है, जॉइंट पेन के लिए बेस्ट एक्सरसाइज है। अपने ब्रीदिंग को नॉर्मल रखना है। 10-15 सेकेंड होल्ड। किसी भी पोर्शन में ब्रीदिंग को होल्ड नहीं करना है। कंप्लीटली अपने थाइज और काफ्स को स्ट्रेच देना है। इस तरह inhale, then exhaling slowly, hands and leg down, very slowly. After Tadasana, then do Vrikshasana.
वृक्षासन ट्री पोज। तो एक पैर को फोल्ड करके अपने दूसरे पैर के ऊपर प्रेस करना है, अपने थाइस के ऊपर प्रेस करेंगे। सिंपली रखोगे तो नीचे की तरफ पैर स्लिप होगा, उसके ऊपर प्रेस करना है। कोशिश करनी है अपने शोल्डर और अपना नी वन लाइन में हो जाए। कंप्लीटली प्रेस, एक पॉइंट के ऊपर बैलेंस करके, कंसंट्रेट करके बैलेंस करोगे तो हो जाएगा। अभी आपको लगे यहाँ पे बैलेंस हो रहा है, देन स्लोली हैंड्स अप पैरेलल टू शोल्डर लेवल। यहाँ पे कॉन्फिडेंस आया है, अभी बैलेंस हो गया। अगेन स्लोली हैंड्स अप एंड जॉइन योर पाम, जॉइन योर पाम कंप्लीटली। Stretch your hand. Maintain breathing normal. Completely feel the stretching between your back, shoulder, and leg. Completely. Breathing normal. Again inhale and exhaling slowly, hands down. Very slowly, hands down. And then leg down. Then change your leg. One. Bend your leg, place it on your thigh, press it, focus on your single point, balance, then slowly hands up parallel to shoulder level, again balance, then again inhaling hand up and join your palm in Namaskar Mudra. Maintain, breathing normal, maintain for 5 to 10 seconds. Feel the stretching effect in your arm, shoulder, back and leg completely. Concentrate, concentrate. Inhale, then exhaling slowly, hands down. Very slowly, hands and leg down. वृक्षासन से आपके लेग स्ट्रॉन्ग बनते हैं, नी पेन के लिए बेस्ट है। जब हाथ ऊपर स्ट्रेच करते हैं तो शोल्डर एक्सपांड होते हैं, शोल्डर एक्सपांड होते हैं, दैट मींस आपकी लंग्स कैपेसिटी इंक्रीज होती है। आप एक पॉइंट के ऊपर कंसंट्रेट करके बैलेंस करते हैं, इससे आपका कंसंट्रेशन लेवल बढ़ता है। अब वृक्षासन, देन त्रिकोणासन। इस पोस्चर में 3 ट्रायंगल बनते हैं, इसलिए इसको त्रिकोणासन। तो मोर डिस्टेंस बिटवीन बोथ लेग, अपने शोल्डर से बाहर टेक डिस्टेंस। Inhaling, raise your hands up parallel to shoulder level. Then turn your right feet right side. अपने right feet को right side की तरफ turn करेंगे. Then slowly inhale and exhaling bend towards right side. अपने right ankle को touch करने की कोशिश करेंगे, जितना bend कर पाते हो उतना bend करना है। Ankle, knee, shin bone जितना बेंड कर पाते हो उतना बेंड करके होल्ड करना है। मेंटेन फॉर 5 सेकेंड, वेरी स्लोली, ब्रीदिंग नॉर्मल। अगेन कम बैक इन सेंटर, स्लोली कम बैक एंड हैंड्स डाउन एंड टर्न योर फीट। सेम प्रैक्टिस अदर साइड। Again inhaling, raise your hands up parallel to shoulder level. Turn your left feet left side. Inhale and exhaling slowly bend towards left side. Look straight. सामने देखना है और bend करना है। अपने ankle को टच करना है। जितना ज्यादा डिस्टेंस लोगे उतना आप नीचे bend कर पाओगे। Breathing normal. Feel the stretching effect in your legs, back and waist completely. Maintain for 5 seconds without any hold. Again slowly come back in center and slowly hands down and legs together. After Trikonasana, then do this Ardha Chakrasana. Ardha Chakrasana half wheel pose. तो अपने शोल्डर में जितना डिस्टेंस है उतना लेग्स में डिस्टेंस लेना है। अपने थंब को बैक की तरफ, 4 फिंगर फ्रंट की तरफ हाथ रखना है। एल्बोज को साइड में नहीं लेना है, एल्बोज कंप्लीटली बैक, शोल्डर और एल्बोज
pose should be one line completely. Then slowly inhale and arch your back. आप इसमें ब्रीदिंग नॉर्मल रखते हुए जितना आर्च कर सकते हो उतना आर्च करना है. Slowly arch your back and maintain. जितनी कैपेसिटी है उतना ही आर्च करना है, दोनों हाथों को कमर पे रखते हुए. स्लोली ब्रीदिंग को होल्ड करते हुए मेंटेन नहीं करना है, जितना आर्च कर सकते हो उतना आर्च कीजिए. मेंटेन फॉर 5 सेकेंड. 5 4 3 2 1. Slowly come back in center. One more time. Again inhale and exhaling slowly back. Maintain breathing normal. 5 second hold. Feel the stretching effect in your neck and back. 2. Slowly come back and relax. After standing asanas, sit. अभी करेंगे सिटिंग आसना. तो sit on your mat. Sit and stretch for length. जैसे हर एक पोस्चर में रिलैक्सेशन पोस्चर रहता है, वैसे सिटिंग पोस्चर में रिलैक्सेशन पोस्चर है दंडासन. ये दंडासन दोनों पैर को आगे सीधा स्ट्रेच करना है, दोनों हाथ बैक की तरफ रखना है and look up. Simply breathe in and gently breathe out. लंबी सांस लेनी है और लंबी सांस छोड़नी है. स्टैंडिंग आसन के बाद जो ब्रीदिंग पैटर्न चेंज हुआ है उसको नॉर्मल करना है, क्योंकि रिलैक्स हर एक आसन के बाद रिलैक्सेशन करना है ताकि आप नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए आपकी बॉडी प्रिपेयर हो. सो इनहेल एंड स्लोली एक्सहेल. बैक स्ट्रेट रहेगी, दोनों हाथों को सपोर्ट दीजिए बैक की तरफ तो बैक सीधी रहेगी. सिंपली इनहेल and gently exhale. After Dandasan, then start Bhadrasan, butterfly. दोनों पैरों को क्लोज करते हुए अपने बॉडी से जितना क्लोज कर सकते उतना क्लोज करना है. बैक स्ट्रेट, कंप्लीटली स्ट्रेट. इसमें भद्रासन, भद्रासन को बटरफ्लाई निकनेम है बटरफ्लाई. तो बटरफ्लाई करना, सब ऐसे बोला बटरफ्लाई करना है तो सब लोग ऐसे नी को फ्लाई करना स्टार्ट कर देते हैं. बट अगर ऐसे फ्लाई करना स्टार्ट करेंगे तो बटरफ्लाई नहीं होगा. बटरफ्लाई मतलब सिर्फ इतना पोर्शन जिससे आपके नी नीचे टच हो. तो बटरफ्लाई आप ऐसे साल भर भी प्रैक्टिस करोगे फ्लाई करने की तो लेग आपके नी नीचे टच नहीं होंगे. तो आपको जितना क्लोज किए हैं पैर उतने क्लोज करते हुए धीरे से inhaling up, exhaling down and press your knee. सांस लेते हुए पैरों को नी को ऊपर उठाइए और सांस छोड़ते हुए धीरे से नीचे की तरफ प्रेस कीजिए. सांस लेते हुए ऊपर और सांस छोड़ते हुए नीचे. Again inhaling up, exhaling down and press your thigh. बटरफ्लाई से आपके कंप्लीटली थाइज में स्ट्रेच आएगा, साइमल्टेनियसली बैक में भी आएगा. इससे आपकी बैक स्ट्रेट बनेगी, बैक पेन के लिए बेस्ट है. इससे आपका हार्मोनल बैलेंस मेंटेन रहेगा, लेग के मसल स्ट्रांग होंगे. स्लोली अगेन 2 times more. Inhaling up, exhaling down. Again inhaling up, exhaling down. Inhaling up, exhaling down. After Bhadrasan, again leg stretch. And ankle movement clockwise and anti-clockwise. Then sit in Vajrasan. अभी बैठेंगे वज्रासन में. वज्रासन दोनों पैरों को थंब को पीछे से क्लोज करना है और अपने हील्स के ऊपर बैठना है. वज्रासन, वज्रासन हमारे डाइजेशन के लिए बेस्ट होता है. इससे डाइजेशन सिस्टम इंप्रूव हो जाती है. नॉर्मल
नॉर्मली हम लोग सब लोग अभी सबका ऑनलाइन ऑफलाइन चल रहा है, तो सब लोगों को बैठे काम ज्यादा है, तो हम लोग सब ज्यादा टाइम बैठने के बाद ऑटोमेटिकली शोल्डर आगे की तरफ ड्रॉप डाउन हो जाते हैं। कितना भी कोशिश करें 5 मिनट 2 मिनट्स आप सीधे बैठो, बट आफ्टर 5 मिनट्स के बाद ऑटोमेटिकली बैक जो है वो डाउन हो जाती है। तो वज्रासन में आफ्टर डिनर आफ्टर लंच कंपल्सरी बैठना है ताकि आपका डाइजेशन प्रॉपर हो और आपकी बैक स्ट्रेट हो। नॉर्मल वज्रासन में बैठने के बाद भी ऑटोमेटिकली बैक स्ट्रेट होती है और आपके बैक में स्ट्रेच आना स्टार्ट होता है, क्योंकि जिनके बैक में ज्यादा वज्रासन में बैठने के बाद पेन होता है, दैट मींस वो नॉर्मल पोस्चर में ज्यादा फॉरवर्ड करके बैठते हो तो आपके बैक में ज्यादा स्ट्रेच आता है। तो बैक सीधे रखनी है और सिंपली बैठना है। ये वज्रासन। अभी हम वज्रासन में करेंगे पर्वतासन। तो बोथ हैंड बिसाइड योर बॉडी, बैक स्ट्रेट, slowly inhaling, raise your hands up, slowly hands up and join your palm. फाइनल पोस्चर माउंटेन जैसे है, इसीलिए इसे पर्वतासन बोलते हैं। अभी अपने हाथों को ज्वाइन करते हुए जितना ऊपर स्ट्रेच कर सकते हैं उतना ऊपर स्ट्रेच कीजिए। जिनकी बैक बेंड है उनके हाथ स्ट्रेट नहीं होंगे, तो कोशिश करें अपने कान के लेवल अपने हाथों को स्ट्रेट करने की। जितने हाथों को खींचेंगे उतने बैक में स्ट्रेच आएगा, इससे आपके शोल्डर ओपन होंगे, इससे बैक मसल्स रिलैक्स होंगे, आपकी स्पाइनल कॉर्ड के लिए बेस्ट है। मेंटेन करेंगे 5 सेकेंड और अपने ब्रीदिंग को नॉर्मल रखिए। फिर से इनहेल करें और एक्सहेल करते हुए धीरे से अपने हाथों को नीचे लाइए। Thank you for watching my video. Like and subscribe.